Hello aspirants, welcome back to our channel. Are you waiting for your interview call? Or you have received a call, your interview is round the corner? Need not worry. You should know how to tailor your answers to the specific job and company you are interviewing for because preparation is the key. If you prepare well beforehand, you are going to succeed in your job interview. Along with preparation, you should practice your responses beforehand to ensure clarity and confidence during the job interview. Whether you are a recent graduate or a seasoned professional, nailing these job interview questions is essential to landing your ड्रीम जॉब. अगर आप अपना ड्रीम जॉब पाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पहले से तैयारी करनी होगी. टेंशन लेने से कोई फ़ायदा नहीं. Today in this lesson I am going to focus on 10 most common but important and tough questions that you will likely to get in your job interview. आज मैं आपको इस वीडियो में उन 10 क्वेश्चंस को बताना चाहूँगी, उसमें टिप्स देना चाहूँगी कि कैसे आप अपने आंसर बनाएं. So you need to develop that skill, how to mold your answers to a variety of questions which are often asked in the job interview. Let me tell you one thing. The interviewers, they love to ask unexpected questions. They want to see how you perform under pressure. So, guys, today's topic is how to answer 10 most common tough job interview questions, useful tips and strategies. So, let's get started. You should understand the structure of interview questions if you want to answer them effectively. There are 3 categories of interview questions: technical interview questions, behavioral interview questions, situational interview questions. How to prepare them? Technical questions, interview questions, they focus on your knowledge, your expertise in a particular field. आपकी नॉलेज को वो टेस्ट करते हैं, आप कितने एक्सपर्ट हैं अपने फील्ड में वो टेस्ट करते हैं. एंड बिहेवियरल इंटरव्यू क्वेश्चंस, दे टेस्ट योर पास्ट बिहेवियर and also they show how you have handled specific situations during your job. बिहेवियरल इंटरव्यू क्वेश्चंस आपके पास्ट बिहेवियर को जज करते हैं कि कैसे एक स्पेसिफिक सिचुएशन को आपने हैंडल किया जब आप पिछले जॉब में थे. सिचुएशनल इंटरव्यू क्वेश्चंस, दे आर बेस्ड ऑन हाइपोथेटिकल सिचुएशन. एक इमेजिनरी सिचुएशंस पर ये बेस्ड होते हैं कि अगर ऐसा हो तो आप क्या करोगे. तो रियल में वैसा नहीं है, लेकिन इमेजिन करिए. तो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं सिचुएशनल. इसमें क्या आपको इंटरव्यूअर क्या जज करना चाहते हैं, क्या टेस्ट करना चाहते हैं? दे वांट टू टेस्ट योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स. तो ये तीनों ही क्वेश्चंस आपने अपने जॉब इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करने हैं. और इनको प्रिपेयर करने का बेस्ट मेथड क्या है? लेट मी टेल यू. यूज स्टार मेथड टू स्ट्रक्चर योर आंसर्स. Along with STAR method, you should use the power of storytelling too. Tell a story from your past experience and share it with your interviewer. The interviewer will be impressed. अगर आप इंटरव्यूअर को इम्प्रेस करना चाहते हैं तो आपको ये दोनों मेथड यूज़ करने होंगे, स्टार मेथड और स्टोरी टेलिंग मेथड, क्योंकि स्टोरीज बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं और वो याद भी रहती हैं. इंटरव्यू के लिए कितने कैंडिडेट्स आते हैं, लैक्स में कैंडिडेट्स आते हैं, तो कितना इंटरव्यूअर याद रख पाएंगे. लेकिन अगर आपने अपने आंसर को स्टोरी फॉर्म में दिया तो वो चांसेस ज़्यादा है याद रखने के, और हो सकता है फाइनली यू आर सिलेक्टेड. तो स्टार का क्या मतलब है? स्टार स्टैंड्स फॉर S for situation or challenge. So you can describe a situation or challenge from your past experience. T for task or goal. And what was your goal or task to achieve? You will describe it. A for action to address the situation. What kind of steps you took or action you took to solve your problem, to address the situation, handle the situation. आपने situation को handle करने के लिए कौन कौन से steps लिए. R for result. And what was the result? What was the outcome? और उसका result क्या रहा? You must have succeeded. So, and what did you learn from your experience? Are you applying the experience in your future? तो ये भी आपने बताना है कि आपने उस experience से सीखा क्या. और आप Here are 10 common, tricky and important job interview questions along with answers and tips on what the interview may be asking. The question number 1 is, tell me about yourself. ये question
आपको कई तरीके से पूछा जा सकता है, अपने बारे में बताओ, वॉक मी थ्रू योर रिज्यूमे में आपने क्या बताया है वो बताओ, इस तरीके से। लेकिन आपने समराइज़ नहीं करना है, रिज्यूमे का एक एक पॉइंट नहीं लेना है, आपने इसमें कुछ एक्स्ट्रा दिखाना है टू इम्प्रेस द इंटरव्यूअर एक्चुअली क्या जानना चाहते हैं। द इंटरव्यूअर वॉन्ट्स टू नो अबाउट योर प्रोफेशनल बैकग्राउंड, नॉट योर पर्सनल बैकग्राउंड, नॉट योर फैमिली, हाउ इट रिलेट्स टू द जॉब। Your professional background, is it related to the job, the current job you have applied for? जिस जॉब के लिए आपने अप्लाई किया है आपकी प्रोफेशनल बैकग्राउंड उससे मैच करती है, ये जानना चाहते हैं। तो इसमें आपने कौन कौन से, जब आप आंसर देंगे तो आपको क्या क्या उसमें पॉइंट्स देने हैं। यू प्रोवाइड अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ योर रेलेवेंट एक्सपीरियंस, योर स्किल्स, योर अचीवमेंट्स and focus on what makes you good fit for the job, strong fit for the job, for the पोजीशन वी कैन से, जिस पोजीशन के लिए आपने अप्लाई किया है आप कैसे अपने को उसके लिए फिट मानते हो, उसके लिए योग्य मानते हो, ये भी आपने बताना है। ओके और मैंने इस क्वेश्चन पर एक सेपरेट वीडियो भी बनाया है, आई विल शेयर द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो डिटेल में देख लीजिए। इस वीडियो में मैं ज़्यादा डिटेल में इस क्वेश्चन पर नहीं जाना चाहूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वाई डिड यू लीव योर लास्ट जॉब? So the reason was, what was the reason? What does the interviewer actually want to ask you? Actually, the interviewer wants to understand your reason for leaving your job and if there were any issue in your previous role. कोई इश्यू तो नहीं था, आपने क्या रीज़न था, क्यों आपने जॉब छोड़ा। तो इसमें भी आप नर्वस हो सकते हैं, कंफ्यूज हो सकते हैं, बट इफ़ यू फॉलो दीज स्टेप्स यू कैन क्राफ्ट योर इम्प्रेसिव आंसर। Avoid speaking negatively about your previous employer and colleagues. Remember, आपको ये ध्यान रखना है, you have to be honest, but you don't speak about your previous employer or colleagues negatively. आपने नेगेटिव नहीं बोलना है अपने पुराने एम्प्लॉयर के बारे में और कलीग्स के बारे में। You have to focus on positive reasons. वो पॉजिटिव रीजन्स क्या हो सकते हैं? Like your career growth, your new challenges, और अ बेटर फिट फॉर योर स्किल्स एंड इंटरेस्ट। तो ये रीजंस आप दे सकते हैं कि करियर ग्रोथ के लिए मैं इस कंपनी को ज्वाइन करना चाहती हूँ। न्यू चैलेंजेस, आई लव न्यू चैलेंजेस, आई एम अ बेटर फिट फॉर योर स्किल्स एंड इंटरेस्ट। आप जो स्किल्स चाहते हैं कैंडिडेट में वो मुझ में हैं और आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन दिस जॉब। तो इस तरीके से आप अपना इंटरेस्ट भी शो कर सकते हैं। Next question, why do you want to work for this company? The interviewer is testing your motivation and interest in the company. यहाँ पर इंटरव्यूअर आपका मोटिवेशन और इंटरेस्ट को, कि आप कितने मोटिवेटेड हैं, कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं इस कंपनी में, ये टेस्ट करना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है? रिसर्च द कंपनी बिफोर हैंड। आपने पहले से कंपनी के बारे में पूरी रिसर्च कर लेनी है कि कंपनी के कल्चर क्या है, वैल्यूज़ क्या हैं। आपने क्या करना है, आपने जो भी कल्चर, वैल्यूज़, प्रोडक्ट, सर्विसेज, रीसेंट अचीवमेंट्स जो भी आप बताएंगे, दैट शुड अलाइन विद योर इंटरेस्ट एंड करियर गोल्स। उसको करियर गोल्स के साथ कनेक्ट करके बोलना है कि आपका भी यही गोल है, आप भी यही अचीव करना चाहते हैं, आप में भी यही स्किल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन 5 years? आप अगले 5 साल में अपने को कहाँ देखते हैं? तो इंटरव्यूअर क्या जानना चाहते हैं? द इंटरव्यूअर वांट्स टू अंडरस्टैंड योर करियर गोल्स, कि आपका करियर गोल क्या है, आप क्या अचीव करना चाहते हैं। इफ़ दे अलाइन विद द कंपनीज गोल्स, क्या वो मैच करते हैं कंपनी के गोल्स के साथ, ये जानना चाहते हैं। तो जब आप इसका आंसर बनाएंगे तो आपने क्या क्या पॉइंट्स देने हैं उसमें? यू शेयर योर लॉन्ग टर्म गोल्स वाइल शोइंग योर इंटरेस्ट इन ग्रोथ विद इन द कंपनी। यू हैव टू शो योर लॉन्ग टर्म करियर गोल्स while also showing your interest in growing within the company. Okay, and you have to emphasize your commitment to continuous learning and development. Question is, what are your strengths and weaknesses? This question is also equally important. So what does the interviewer want to assess? The interviewer is assessing your self awareness, कि आप कितना अपने बारे में जानते हैं, and ability to address your weaknesses एंड इंक्रीज योर स्ट्रेंथ्स, कि कितने आप अपनी स्ट्रेंथ्स को इंक्रीज कर सकते हैं और वीकनेसेस को इम्प्रूव कर सकते हैं। क्या बताना है? चूज अ जेन्युइन वीकनेस
tell about it in a way that shows you have worked to improve it. Suppose, for example, I used to struggle with time management, but I have since implemented a prioritization system that has greatly improved my efficiency. कि मैंने अब मेरा अपनी प्रायोरिटी पर मैंने ध्यान देना शुरू किया कि मुझे कौन सा काम पहले करना है, और इससे मुझे बहुत मदद मिली है और मैंने अपनी एफिशिएंसी को इम्प्रूव भी किया है. बेस्ड ऑन योर नाउ स्ट्रेंथ्स, बेस्ड ऑन योर जॉब डिस्क्रिप्शन, चूज 3 एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रेड्स दैट द एम्प्लॉयर इज लुकिंग फॉर. तो आपने कौन सी स्ट्रेंथ बतानी है. आपने जब जॉब कंपनी के बारे में रिसर्च करी, जॉब के बारे में रिसर्च करी, तो कंपनी कौन सी स्किल्स चाह रही है कैंडिडेट में, आपने उन 3 स्किल्स को नोट किया और उसी पर बेस्ड उन स्किल्स को वही अपनी स्ट्रेंथ आपने शेयर करी. गिव एग्जाम्पल्स हाउ यू हैव देम एट योर वर्क प्लेस, और आपने हाउ यू हैव यूज देम एट योर वर्क प्लेस. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. कैन यू टेल मी अबाउट अ डिफिकल्ट सिचुएशन यू फेस्ड एंड हाउ यू हैंडल्ड इट. हाउ यू हैंडल्ड इट. Actually, the interviewer wants to assess how you solve the problems, how you handle your challenges. वो आपकी उस एबिलिटी, उस स्किल को, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को टेस्ट करना चाहते हैं, आपकी एबिलिटी को टेस्ट करना चाहते हैं कि कैन यू हैंडल चैलेंजेस. तो ऐसी सिचुएशन में आपने क्या करना है, यू हैव टू फॉलो द स्टार मेथड. एस फॉर सिचुएशन, डिस्क्राइब अ स्पेसिफिक सिचुएशन और अ चैलेंज. सेकेंड, टी, टास्क or your goal, what was the goal to achieve. And the third, the action or the actions or steps you took to solve this problem. And then you tell about the positive result. Okay, and what you learned from this experience you need to mention. आपने सीखा क्या इस एक्सपीरियंस से और आप अब इसको यूज़ कर रहे हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, ये बताना भी बहुत ज़रूरी है. और आपने क्या हाईलाइट करना है, adaptability. You are not tensed, you stay calm and confident. Resilience and your decision making skills. Okay, so you have to highlight these skills when you answer this question. Question number 7. Can you describe a conflict with a difficult co-worker, your client? Actually, the interviewer wants to test your interpersonal skills, your ability to handle conflicts with your colleagues. Are you a team boy? You love to work with team members? So when you answer this question, what to do? You describe the situation. Again, you use the STAR method. You describe the situation, how you approach it professionally, and the steps you took to resolve the conflict or improve the relationship. तो आपने इसी स्टार मेथड को यूज़ करना है, उस सिचुएशन को बताना है जब आपकी किसी से फाइट हो गई या बहस हो गई, और कैसे आपने प्रोफेशनली अप्रोच किया, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेप्स लिए, और वो कॉन्फ्लिक्ट कैसे दूर हुआ, कैसे आपके रिलेशनशिप्स इम्प्रूव हुए. तो ये सब आपने स्टार मेथड यूज़ करके और स्टोरी टेलिंग मेथड यूज़ करके बताएंगे तो वो आंसर बहुत इंप्रेसिव होगा. और आपने इसमें स्किल्स कौन सी हाईलाइट करनी है, यू नीड टू हाईलाइट योर कम्युनिकेशन स्किल, योर एम्पैथी. एम्पैथी मीन्स यू आर सेंसिटिव टू अदर्स इमोशंस without hurting others. You try to solve that problem. And your problem solving skills. So these questions are very tricky, very important. Prepare them well. Next, why should I hire you? ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि भाई क्यों तुम्हें हायर करें, ऐसी तुम में क्या खास बात है. तो इस क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है, इसमें wants to test your suitability for the job. So you mention your skills, your experience, your achievements that make you ideal fit for the job. Next, what's your salary expectation? Now here, the interviewer wants to ensure that your salary expectation align with the budget for the position. इसके लिए क्या करना है, research the company's salary range and industry standards फॉर द सिमिलर पोजिशंस. तो आप पहले रिसर्च करिए कि सैलरी रेंज क्या है कंपनी की और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स क्या हैं फॉर द सिमिलर पोजिशंस. उसके बाद प्रोवाइड अ रेंज बेस्ड ऑन योर स्किल्स. फिर अपनी स्किल्स पर बेस्ड आपने उस रेंज को, सैलरी रेंज को बताना है. एक्सपीरियंस और कॉस्ट ऑफ लिविंग इन द एरिया.
आप जिस एरिया में जॉब करना चाह रहे हैं वो एरिया कॉस्टली है, वहाँ लिविंग कॉस्टली है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपने अपनी सैलरी एक्सपेक्टेशंस बतानी है। लास्ट क्वेश्चन but not the least, do you have any question for us? Now here the interviewer wants to see your level of interest in the company. If you have done your research, वो ये भी चेक करना चाहते हैं आपने उनकी कंपनी के बारे में रिसर्च किया है ये। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, प्रिपेयर थॉटफुल क्वेश्चंस अबाउट द कंपनी कल्चर, अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ग्रोथ, स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स, इनिशिएटिव्स, इन सब टॉपिक्स पर आपने क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं। अवॉइड आस्किंग क्वेश्चंस आस्क्ड ऑन द वेबसाइट ऑफ द कंपनी, और उनकी वेबसाइट पर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसमें से क्वेश्चंस मत लीजिए, अपने फ्रेम करिए। सो प्रिपेयर थॉटफुल क्वेश्चंस अबाउट द कंपनी कल्चर, टीम डायनामिक्स, अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ, स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स और इनिशिएटिव्स। ओके, सो इन दिस वे you can prepare yourself and you can answer the questions with confidence. What are strategies to handle difficult or unexpected interview questions? कभी कभी इंटरव्यूअर ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किए होते, तो ऐसी सिचुएशन में आपको किन पॉइंट्स को ध्यान में रखना है और अपने रिस्पॉन्स को प्रिपेयर करना है। सबसे पहले यू शुड नो योर रिज्यूमे में जो भी आपने डिटेल्स दिए हैं वो आपको अच्छे से पता होने चाहिए। यू शुड रिसर्च द कंपनी, कल्चर ऑफ द कंपनी, मिशन, वैल्यूज़, ये सब आपको क्लियर होना चाहिए। यू शुड रिसर्च द जॉब रोल यू हैव अप्लाइड फॉर, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, जॉब रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, कौन सी स्किल्स कंपनी चाहती है, एंड इंटरव्यू प्रोसेस इफ़ यू वांट टू आंसर योर क्वेश्चंस विद कॉन्फिडेंस। Practice common interview questions. The questions which I have discussed in this video, prepare them, follow the tips and practice them. But don't memorize them. उनको आपने क्रैम नहीं करना है, रटना नहीं है, क्योंकि इंटरव्यूअर कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो कैसे आप अपने आंसर को मोल्ड कर पाएंगे वो सीखना ज़्यादा ज़रूरी है। Use the power of storytelling method or STAR method while answering behavioral questions, situational questions to impress the interviewer. अगर आप इंटरव्यूअर को इम्प्रेस करना चाहते हैं तो स्टार मेथड फॉलो करिए और स्टोरी टेलिंग मेथड फॉलो करिए। स्टे काम एंड कॉन्फिडेंट। कोई क्वेश्चन ऐसा आपसे पूछा गया जो आपको नहीं आ रहा है, यू डोंट नो हाउ टू आंसर, तो बेस्ट थिंग क्या है, यू स्टे काम एंड कॉन्फिडेंट। आपको टाइम चाहिए, आपको रिस्पॉन्स के बारे में सोचना है, तो आप ये भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं इंटरव्यूअर से, प्लीज़ रिपीट द क्वेश्चन, और यू कैन आस्क फॉर क्लैरिफिकेशन, ओके, और यू कैन टेक सिप ऑफ वाटर। तो इस तरीके से आपको टाइम मिल जाएगा उस क्वेश्चन का आंसर देने में, एंड यू कैन आंसर वेल। शो योर इंटरेस्ट एंड एंथुजियाज्म बाय आस्किंग द इंटरव्यूअर अ क्वेश्चन। At the end of the interview, you should ask the interviewer some questions. क्या शो करने के लिए कि you are interested in the job, you are very much excited. आप उनके कल्चर के बारे में पूछ सकते हैं, वर्क कल्चर के बारे में पूछ सकते हैं, what are the expectations, what are the challenges, what is the feedback. इस तरीके से इन टॉपिक्स पर आप क्वेश्चन प्रिपेयर कर सकते हैं। Thanks everyone for watching the video. I hope this video has boosted up your confidence. Now you are ready to draft your impressive answers by following the tips provided in the video.